Once again, welcome in Gurukul of Ashok sir. In previous video, you have learnt about Euclid division lemma, and in this video, you have to learn about Euclid division algorithm. First, we have to know about algorithm. What is algorithm? Algorithm is a well-defined series to solve a problem in briefly. संक्षिप्त में कर सकते algorithm is an other application of Euclid division lemma, just like axiom as a lemma axiom था, and algorithm is a process. algorithm process, किस प्रोसेस से आप कोई वर्क करें, just like algorithm. By Euclid division lemma, you can do two process. First, long division method. Long division method to know about division. आप long division method से देखें कि कैसे वन पॉजिटिव इंटीजर अदर पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, उसे नंबर ऑफ फॉर्म्स. अब जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंतर्गत, अंडर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यू हैव टू नो अबाउट टू फाइंड एचसीएफ. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन इजी वे. जस्ट लाइक you are given 117 and 45. These two positive integers are given for you, and you have to find HCF of 170 and 45. HCF of 170 and 45. In earlier classes, previous classes, you find HCF by prime factorization method, by common division methods, and by long division method. Here, यहाँ भी हम long division में, यहाँ long नीचे क्लास में, पहले क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पे, कॉमन डिवीजन के आधार पे आपने HCF को निकाला. यहाँ आपको to find HCF by long division method with help of Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पे एचसीएफ को निकालना है. फर्स्ट स्टेप में एयर और 117 greater than 45, 117 greater than 45, and both are positive integers by Euclid division lemma, by Euclid's division lemma. 117 and 45 are two positive integers. Then for these two positive integers, a quotient and remainder exists such that 170 equal to 45 into cube plus half. Now 45, 170, 14, 45 to the 90, 7, 11, 19, 27. Here, or 170 equal to 45 into 2 plus 27. Euclid division lemma, in Euclid division lemma, quotient is not important, important is remainder. In Euclid division algorithm also here divisor and remainder, you have to focus on only divisor and remainder. HCF निकालने के लिए यहाँ पर divisor और remainder. जिस स्टेप में, in which step remainder comes 0, then that step is finished. Here remainder is 27. By Euclid division 117 45 into 2 into 27.
बाय स्टेप, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपको तब तक डिवाइड 27 से ये 45, 27 1 जाए 27, 18, 27, 18 1 जाए 18, 9 9 18, 9 2 जाए। आप यहाँ डिवीजर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर चेंज इनटू डिवीजर, रिमाइंडर चेंज इनटू डिवीजर, रिमाइंडर चेंज इनटू डिवीजर। और इन व्हिच स्टेप्स रिमाइंडर exactly divides previous remainder, then that divisor is the SCF of 170 and 45. Yeah, you are given numbers 170, 45 into 2, 2 plus 7 in first step. In second step 45 equal to 27 into 1 plus 18. In third step 27 equal to 18 into 1 plus 9, and fourth step 18 equal to 9 into 2 plus 3. Now we have remainder as a 0. Then we can say HCF 11745 equal to 9. 9 is the SCF. By division algorithm we find SCF of two given positive integers. Here also we say SCF 11745 equal to SCF in each step 45, 27 equal to SCF 27, 18 equal to SCF 18, 9 equal to 9. तो इक्वली बाय इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से ये भी आप जानते हैं ईच स्टेप में आपको जो है जो डिवीजर और डिवाइडेंड जो पेयर मिलता है ईच 117 45 45 27 27 18 18 19 ईच स्टेप में आपको एक डिवाइडेंड और एक डिवीजर वन आता है। तो ईच स्टेप में जो आपको डिवीजर और डिवाइडेंड मिलता है हर एक स्टेप के पेयर का SCF 9 ही होगा। 27 18 का भी, 18 9 का भी, 45 27 का भी। इस ढंग से आपको SCF निकालना हो, बस सिंपल वे से इसको शो कर देना है। एक क्वेश्चन और, ये आपको SCF जो है एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी कहा जाता है। इसको शो करने के लिए लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में शो करने के लिए आपको जो है जस्ट लाइक बतलाते हैं आपको। ये देखिए लीनियर इक्वेशन में अगर शो करना है तो अगर जो है SCF 175 ये जो SCF आया 9 आया तो 9 इक्वल टू आपको 117x प्लस 45y। इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ता है जहां पर x का और y का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए सबसे आसान इजी वे है फ्रॉम हम लोग सेकेंड स्टेप से लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या देखते हैं 27 इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 9। इट मीन्स 9 इक्वल टू यहां लिख सकते हैं 9 इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 27 माइनस 18 इंटू 1। ये ले लीजिए 27 माइनस 18 इंटू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां देखते क्या है 18 इक्वल टू 45 माइनस 27 इंटू 1। और ये लास्ट स्टेप में क्या देखते हैं और 27 इक्वल टू
117 minus 45 into 2. 45 into 2. 27 equal to 117 minus 45 into 2. अब जो है आप इसको सबसे आसान तरीका के लिए आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये आपको करना है, इस स्टेप में देखिए, ये लास्ट स्टेप को ही लेकर हम ये टेक्निकल फॉर्म है 27 इक्वल टू 170 माइनस 45 इंटू 2। यहाँ भी हमको 117 एक्स और 45 वाई में लाना है। यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, तो ऐसा करते हैं और 27/3 तो 9 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 170 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 45 इंटू 2 इंटू 1/3 और 9 इक्वल टू 117 इंटू 1/3 प्लस, यहाँ प्लस का यूज 45 इंटू माइनस 2/3। यहाँ तो ये लिख सकते हैं 170 इंटू 3। अब कंपेयर x के जगह पर 1/3, y के जगह पर -2/3 और 9। अब ना लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 117 x प्लस 45 y where x इक्वल टू 1/3 y इक्वल टू -2/3। सबसे आसान तरीका, क्योंकि इस स्टेप जो HCF आया, HCF जो है आपको कॉमन फैक्टर सबका है, इसको इस वे में लाकर आसान से बना सकते हैं। सबसे शॉर्ट प्रोसेस, और अदर प्रोसेस भी है, लेकिन सबसे आसान प्रोसेस इसी ढंग से जो भी HCF दिया हुआ रहेगा आप इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पे HCF को फाइंड करना, और जो HCF फाइंड हुआ वह लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कैसे शो होगा, इसके अंतर्गत ये जाने। और इसके बाद जो है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बाद, ये तो आप समझ गए हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें, या तो आप इसको समझ लिए। डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंतर्गत आपको HCF फाइंड करना है, दोनों जो बहुत नंबर का आप डिवीजन मेथड से 170 यूक्लिड डिवीजन 170 इक्वल टू 45 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में 170 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 27, 45 27 का निकालते हैं, फिर HCF 27 18 का निकालते हैं, 89 का निकालते हैं, लास्ट में एलिमेंट 0 आता है, तो आपको हो गया 117 और 45 का HCF 9 होगा। और इस स्टेप में जो डिवीजन का ये डिवीजन और डिवाइडेंड जो बना था उसका जो है, और इस स्टेप पेयर का जो है HCF 9 होगा। उसके बाद आपको बताएं कि ये जो है जो HCF फाइंड हुआ वह जो है जो दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर और आपको उसके जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में 170x प्लस 45 हुआ, तो यहाँ पर इसको आसानी से जो है हर लास्ट स्टेप को ही हम ले लेते हैं। लास्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ फर्स्ट स्टेप जो है इसी को 27 इक्वल टू 27, ये इधर आ गया 170 माइनस 45 इंटू 2 लाने देते हैं। 27 को 9 में लाना है, 27/3 तो बाई 3 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 133 यहाँ आपको प्लस है तो प्लस लाने के लिए यहाँ -2/3, तो 170x प्लस 45y का आपको इक्वेशन आ गया, x बराबर 1/3 y बराबर -2/3। तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंतर्गत। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। दैट्स ऑल।